of Kashi, which ruled the princely state of Banaras. And whether it's Chet Singh Fort or some of the other architectural wonders, they are also a beautiful site of attraction. निश्चित तौर से विश्व की प्राचीनतम नगरी होने का गौरव प्राप्त है काशी को, और यहीं से आदि गुरु शंकराचार्य ने अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष किया, और यहीं पर अनेकानेक विभूतियों ने अपने सद्कर्मों से समूची विश्व की मानवता को नया संदेश दिया। जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत से साम ज्ञान का स्वर्गिक स्वर था दिया सुनाई। विश्व की प्राचीनतम संस्कृति की प्राचीनतम नगरी से ही विश्व के कल्याण का जयघोष हुआ, और ये वही नगरी है जो कि आध्यात्मिक, पौराणिक, धार्मिक नगरी है, लेकिन आज अपने में पुरातनता को समेटे, परंपरा को समेटे, आधुनिकता के नए कलेवर में सजी धजी निखरी पूरे विश्व को अवलोकित करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और समूचा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है, जो कि यहाँ से प्रतिनिधि हैं, यहाँ से सांसद हैं, और काशी के लिए विशेष आदर और सम्मान जिनके मन में है। निश्चित तौर से अगर देखें तो आज काशी के दीपोत्सव में प्रधानमंत्री का शामिल होना इस बात को नए आयाम, नए विलक्षण क्षण भी पैदा करता है, जो कि काशीवासियों के लिए ही नहीं, समूचे देश के लिए गौरवान्वित करने के पल हैं। Varanasi's cultural, religious, spiritual and historical exuberance grants it a mystic and magical color. And we again see the moon here. Okay, we see the moon here, and as I said, that the moon is adding to the charm and beauty of the city today. So we have several stars on the land and a star in the sky. Both are as if communicating to each other. We can also notice the reflection of the lights on the ghats in the water, and it is really a beautiful sight to behold. People who are here on the ghat, they are also enjoying this beautiful light work, the trail of diyas, and are mesmerized at the beauty of Dev Deepavali. And we are sure that through this telecast on Doordarshan, sitting at your home, following COVID appropriate behavior, you are also enjoying this beautiful sight and an active participant to the festivities. Asato ma sadgamaya, tamso ma jyotirgamaya, mrityor ma amritgamaya. Meaning, may we transcend from evil to good, from darkness to light, and from mortality to eternity. One of the unique features of this city is that it celebrates both life and death, mortality. निश्चित तौर से मरणम मंगलम यत्र विभूति यत्र भूषणम कौशेयम यत्र काशायम सा काशी किम न सेव्यते, यानी कि मरण भी जहां पर मंगल है, भस्म की विभूति जहां का भूषण है, कौशेय यानी जहां पर गिरुआ वस्त्र ही यहाँ का वस्त्र हो, ऐसी काशी में कौन नहीं रहना चाहेगा। ये ऐसी अद्भुत काशी है जहां पर मृत्यु पर शोक नहीं होता, जहां पर मणिकर्णिका घाट पर कभी अहर्निश वहां पर चलने वाली जन्म जन्मांतर के व्याधियों को समाप्त करने वाली और मानव शरीर को मात्र ईश्वर के निमित्त दिया गया एक प्रयोजन सब बताने वाला एक ऐसा घाट है जो कि जीवन को भी और मरण को भी पूरी दुनिया के सामने रखता है, और जो निश्चित तौर से जो निसारता है जगत की, उसके साथ ही साथ चाहे वो सन्यासी हों, चाहे गृहस्थ हों, चाहे विरक्त हों, चाहे अन्य लोग हों, उनको एक संदेश देती है कि किस तरीके से जीवन को धारण करना चाहिए और मानवता के कल्याण के लिए अपने को समर्पित करना चाहिए। Kashi has been attracting people since time immemorial, and its antiquity and ancient origin can be guessed, can be seen in the writings of writers of different generations in different cultural traditions. I'm reminded of Mark Twain's words here, who
appreciating the antiquity and the ancient origin and its rich tradition, says Banaras is older than history, older than tradition, older even than legend, and looks twice as old as all of them put together. लिख लिया दूसरी, उसकी स्क्रिप्ट निकाल के मेरी टेबल पे रख देना। Those are breathtaking visuals of the temple town of Varanasi that you're watching on your screens. A short while ago, Prime Minister Narendra Modi participating in Dev Deepavali ceremony, and those lit lamps bear testimony of the same. Beautifully decked up ghats of Varanasi, and Prime Minister Narendra Modi on his boat taking in the beautiful views of the temple town. Those visuals coming in live from Varanasi to you. बहुत ही अद्भुत और अलौकिक दृश्य है ये, आप देख रहे होंगे गंगा के घाट पर वाराणसी, काशी से वाराणसी के घाट जगमगा रहे हैं। और यूं तो वाराणसी के घाटों का ये कायाकल्प 2014 से ही शुरू हो गया था, जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ से सांसद चुने गए, उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने तो वाराणसी के घाटों का कायाकल्प हो गया। शाम होते ही यहाँ पर लगभग सन्नाटा हो जाता था। शाम को यहाँ पर बोटिंग भी नहीं होती थी, नाव भी बहुत कम गिनी चुनी चलती थी। लेकिन 2014 के बाद जब वाराणसी और ये यहाँ पर तमाम घाटों का सौंदर्यीकरण शुरू हुआ, तो सबसे पहला जो फोकस था वो ये था कि घाटों की सफाई हो, स्वच्छता हो, और दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो ये था कि घाटों को रोशन किया जाए, ताकि रात में भी जब यहाँ पर टूरिस्ट हैं वो आए तो उनको एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिले। और शायद कहीं ना कहीं इसकी प्रेरणा, जब प्रधानमंत्री के मन में इसकी जो प्रेरणा है वो देव दीपावली से ही आई होगी, क्योंकि देव दीपावली वो दिन है जब तमाम, इससे पहले भी हम लगातार देख रहे हैं, देव दीपावली वो पर्व है। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय जो क्रूज है, क्रूज शिप में बैठे हैं। ये क्रूज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए बहुत निजी तौर पर इसके लिए उन्होंने एक पहल की, और उसके बाद गंगा नदी में ये क्रूज शिप चलना शुरू हुआ। और इस क्रूज शिप में करीब 20 से 25 लोग एक बार में बैठ सकते हैं। माफ कीजिएगा, 20 से 25 नहीं, 20 से 25 एक इसके फ्लोर पर। कुल मिलाकर देखें तो करीब 50 से 100 लोग इसमें बैठ सकते हैं, और वो उनको गंगा में ले जाया जाता है। तो ये जो घाटों को जो प्रज्वलित करने, घाटों को जो रोशन करने का जो पूरा विचार है, शायद कहीं ना कहीं ये देव दीपावली से ही प्रेरित होकर आया होगा। और उसके बाद जब इन घाटों को इस तरह से रोशन किया गया, तो अब देर शाम होने पर भी, अंधेरा होने पर भी आप देख सकते हैं कितनी सारी बोट्स हैं, नाव हैं जो गंगा जी में इस वक्त, और बहुत सारे सैलानी यहाँ पर आते हैं और वो देर रात भी बोटिंग का आनंद लेते हैं। Absolutely, there in the visual, beautifully lit waters of the holy river Ganga.
Prime Minister Narendra Modi himself acknowledging and the greetings of people all around him, some on boats, some on the ghats, and Prime Minister Narendra Modi on a cruise ship with Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath. Prime Minister there participating in Dev Deepavali ceremony. It's a special ceremony where we see the beautifully lit ghats. It also marks the conclusion of Ganga Mahotsav, the 5-day festival. Prime Minister Narendra Modi addressed the people of Varanasi a short while ago, as he also lit the first diya as a gesture of participating in Dev Deepavali. From here, Prime Minister would be moving towards Ravidas Ghat. There he would be paying his respects at the idol of Sant Ravidas. Ahead today, later in the evening, Prime Minister would be proceeding to the holy site of Sarnath, known for its Buddhist heritage. There the program is of a spectacular light and sound show, but these visuals that are coming in live from the holy river Ganga, the beautiful lit ghats of Varanasi, Prime Minister Narendra Modi spending his time, his day in the holy city of Varanasi. The day that started with the inauguration of important infrastructure project, widening of highway between Prayagraj and Varanasi, improving the connectivity, and we see beautiful light and sound show taking place across the ghat of Varanasi. Those images of Lord Shiva, the Lord of Varanasi. Dev Deepavali is the occasion, conclusion of Ganga Mahotsav 5-day festival, and a beautiful amalgamation of technology and spirituality. Those digital diyas, if I may say, add to the millions of diyas that light the ghat today. ऐसी प्रस्तुति जिसमें भक्ति से परिपूर्ण श्रद्धा भाव है, तपस्या का अद्भुत ओजस है, अंतर्ध्वनि से उत्पन्न संगीत है। प्रस्तुत है देव दीपावली।
वाराणसी के घाट पर यह अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं कि किस तरह से लाइट एंड शो चल रहा है और वहाँ पर वाराणसी में भगवान शिव, जिसको वाराणसी को कहा जाता है, काशी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है, और इस लाइट एंड शो में भगवान शिव का तांडव नृत्य देखने को मिला। जाहिर सी बात है कि जितने लोग वहाँ पर होंगे वो तमाम मंत्रमुग्ध होकर इसको देख रहे होंगे। और यही सब चीज़ें हैं, ये तमाम प्रयास उत्तर प्रदेश टूरिज़्म मंत्रालय की तरफ से, टूरिज्म विभाग की तरफ से किया जा रहा है, और ये तमाम चीज़ें हैं जिसके कारण काशी में, वाराणसी में लगातार टूरिस्टों की संख्या हर साल बढ़ रही है। और ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन, वैसे भी
देव दीपावली पर पूरे दुनिया भर से, पूरे विश्व से लोग आते हैं यहाँ पर देव दीपावली पर्व पर। लेकिन इस बार कोरोना के कारण पूरे विश्व से तो नहीं, लेकिन भारत भर से भी बहुत कम लोग पहुंचे हैं। लेकिन क्योंकि संख्या सीमित है, लेकिन उसके बावजूद ये दृश्य आप देख रहे हैं, कितना अद्भुत नज़ारा है। और इसको देखकर हर किसी का मन यही करेगा कि काश वो भी आज काशी में होता, गंगा घाट पे होता। चेत सिंह घाट का ये दृश्य आप देख रहे हैं, चेत सिंह घाट पर किस तरह से ये लाइट एंड शो जो है वो चल रहा है। Spectacular visuals there, a sound and light show that you just witnessed on the ghats of Holy Ganga in Varanasi. Among the audiences, of course, are the people of Varanasi, but also Prime Minister Narendra Modi and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath from the cruise on the holy river Ganga. Prime Minister also alongside the people of Varanasi witnessing the spectacular light and sound show. The celebration was of Dev Deepavali. Millions of lamps that have been lit on the ghats, complemented by the state-of-the-art technology that was on display. A beautiful amalgamation of the ancient and the modern that is also represented by the city of Varanasi. And here, beautifully lit Chet Ghat on the holy river Varanasi. Important day here. Celebration of Dev Deepavali. Prime Minister Narendra Modi also spending his day here. From launching of infrastructure projects to participating in Dev Deepavali with the people of the city that also happens to be his parliamentary constituency. The holy river Ganga caressing the ghats of Varanasi. The waves are also beautifully lit by millions of diyas that have been lit as part of Deep Deepavali celebration that also marks the conclusion of the 5-day Ganga Mahotsav that is celebrated during this time of the year. The full moon, Kartik Purnima, complementing the celebration taking place by the mortals in the ancient city of Varanasi. जहाँ काशी की संस्कृति और परंपरा है ये देव दीपावली पर्व, और सालों से देव दीपावली पर्व, जब दीपावली खत्म हो जाती है उसके लगभग 15 दिन बाद देव दीपावली पर्व जो है मनाया जाता है काशी में। और ये बहुत खास उत्सव है काशी के लिए, वाराणसी के लिए, और काशी के लिए क्या बल्कि ये कह सकते हैं कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोग दूर दूर से आते हैं। और देखिए ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ये आप महसूस कर सकते होंगे। प्रधानमंत्री जब वहाँ पर बोट में क्रूज में खड़े हैं तो उस वक्त क्या अद्भुत नज़ारा है, ये आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। ऊपर पूरी तरह से चांद है और नीचे लाखों दियों की रोशनी है, और साथ साथ गंगा माँ का स्पर्श है, माँ गंगा की गोद में हैं आप। और आप सोचिए कि ये नज़ारा, ये दृश्य कितना रोमांचित करने वाला और कितना आपकी आत्मा को छू लेने वाला एक ऐसा दृश्य जो शायद आप कभी ना भूल पाएं। ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं, और जब कभी भी आप काशी जाएं, बनारस जाएं, तो ये ज़रूर आप कीजिएगा कि शाम को, इससे पहले अगर आप देखें तो काशी के बारे में कहा जाता है कि काशी की सुबह बहुत निराली होती है, बहुत आध्यात्मिक होती है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपस में कुछ चर्चा करते हुए, बीच बीच में प्रधानमंत्री जो लोग इस वक्त गंगा में बोटिंग कर रहे हैं, नौकायान में हैं, उनको हाथ हिलाकर बीच बीच में उनकी तरफ इशारा भी करते हैं, क्योंकि आसपास जो नावों में लोग निकल रहे हैं वो प्रधानमंत्री को देखकर उत्साहित होकर, उल्लासित होकर उनकी तरफ इशारा करते हैं। और प्रधानमंत्री को जैसे ही मौका मिलता है, अवसर मिलता है, वो उनके अभिवादन का जवाब देते हैं। तो इस वक्त ये जो क्रूज़ है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस क्रूज़ में है, इस क्रूज़ शिप में। इस क्रूज़ शिप में आप जाएंगे तो बहुत महंगा नहीं है, इसका किराया बहुत कम है, लेकिन इस क्रूज़ शिप में आप जाएंगे तो आपको चाय बिस्किट भी मिलेगी, आप इसमें आनंद भी ले सकते हैं इस क्रूज़ शिप में बैठ करके। और इस क्रूज़ शिप से आप तमाम जो आसपास के घाट हैं और जो रोशन घाट हैं, जो बिल्कुल रोशनी से नहाए रहते हैं, उन घाटों के दर्शन आप कर सकते हैं। ये अपने आप में एक अलग तरह का आपका एक अलग अनुभव है, ये बिल्कुल अलग तरह के अनुभव का आप आनंद ले सकते हैं। And Ashok, it has been a particular
a preference of the Prime Minister, if you remember, to travel through the waterways, to promote inland waterways. We know Varanasi is also part of an important waterways from Kolkata to, in fact, Prayagraj. Varanasi forms an important center of inland waterways, and here Prime Minister Narendra Modi on that beautiful cruise ship. And beautiful also are the visuals of the Ghats. The faint yellow line that you see are basically millions and millions of diyas that have been lit on the holy occasion of Deep Dev Deepavali, 5-day Ganga Mahotsav festival. It concludes today, and Prime Minister is here with the people of his parliamentary constituency, a city that is very close to his heart. In his address, when he spoke earlier, also spoke about how it is going to be special for people of Varanasi this moment, this Deep Deepavali, because he also spoke about, it's a special moment, Ashok, when he spoke about an idol of Ma Annapurna that was taken away, stolen decades ago, is also set to return. And there we also got a glimpse of Sant Ravidas Park, the idol of Sant Ravidas, who's followed, who's worshipped by people of all sections of society. Prime Minister, in fact, would also be going and paying their respects. And there in that view, you can see hundreds, thousands and lakhs of diyas lit on the ghats of River Ganga, and the cruise on which Prime Minister Narendra Modi is travelling on the holy River Ganga. आपने वाटरवेज की बात की, तो देखिए आप जिस वक्त ये पूरी परिकल्पना की गई थी, और इससे पहले गंगा में लोग वाराणसी से लेकर कोलकाता तक जाते थे, और न सिर्फ जाते थे बल्कि जो सामान है उनके परिवहन का एक बड़ा साधन पानी से जाने का था। और जिस वक्त इसकी पूरी परिकल्पना हुई, दोबारा जब 2014 में इसकी परिकल्पना हुई, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब गंगा में क्रूज चलाने की बात करी, तो बहुत से लोग इस बात पे हैरान थे, क्योंकि गंगा का पानी इतना गंदा था और इतना उथली थी गंगा। लोग कह रहे थे कि यहाँ पर एक छोटा मोटा क्रूज चलाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे गंगा की स्वच्छता पर काम किया गया, घाटों के सौंदर्यीकरण पर काम किया गया, और आखिरकार आज ये क्रूज शिप इस तरह से आप देख रहे हैं गंगा में। और आपको याद होगा कि अभी जब प्रधानमंत्री पिछले दिनों केवड़िया गए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर, उनके जन्मोत्सव पर जब गए थे, वहां पर भी केवड़िया में भी इसी तरह का एक क्रूज शिप अभी उन्होंने इसकी शुरुआत करके आ रहे हैं। तो कनेक्टिविटी पर प्रधानमंत्री का हमेशा एक जोर रहता है, फोकस रहता है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, और चाहे वो पानी के थ्रू जो कनेक्टिविटी है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा बहुत विशेष आग्रह रहता है। और आप देखिए कि इन तीनों चीजों पर कितनी तेजी से लगातार बीते 6 सालों में काम हो रहा है। ये अलकनंदा आप देखिए, इसका ये जो बोट है अलकनंदा आपको दिख रही है, और अपने आप में ये अब ये सफर यहाँ पर समाप्त हो रहा है, और इसके बाद प्रधानमंत्री का आगे का कार्यक्रम हम देखेंगे। That's right, Ashok. In fact, talking about connectivity, one of the first programs that Prime Minister participated today was a highway NH19 widening that connects Prayagraj with the holy city of Varanasi. And he spoke about how it is going to help all sections of society, not just people who commute on a daily basis, farmers who have to take their produce to different cities, covered yatris who have to travel on these routes. So connectivity a priority for Prime Minister. There, Prime Minister's cruise parking near Ravidas Park, and that is Ravidas Ghat as well. And Prime Minister would be paying his respects to Guru Sant Ravidas, 14th century Sant Ravidas, who is known for his sermons of equality. He's also known for his contribution, the way he led the Bhakti movement in the country. And there, the beautifully lit Varanasi bears testimony to the spirit of Varanasi, Prime Minister, in his address. So you can see